This session is being recorded, and this is Sibo Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And today we have a very first episode of a spoken English online course. And I welcome all of you on this platform. And I want all of you to listen to me very carefully and do as directed, right? I usually conduct 3 sessions a day. Once the first one is in the morning, 10 to 12. Second one in the afternoon, 3 to 5. And the last one in the evening, 8 to 10. And I teach same content in my all sessions because some students, they are available live on Zoom in the morning. Some students are available in the afternoon, and some students, they are available in the evening group. So I welcome all of you once again. And you have a question in your mind, sir, how can we improve our English? Sir, हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? Sir, I want to be a part of language classes. From where should I start? This is the question which I come across almost every day. Most of the students ask this question: how can we improve our English? What are the ways? What are the steps of improving language? So everybody listen up very carefully and answer me whenever I ask you any question. And after this session, you also have an online test. I will share a link with all of you. After listening to this lecture, you will, if you appear in test, I am sure that you will get 100% marks in online test. And I usually conduct my test after every lecture. Sir, how can we improve our English? हम कैसे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं? बेटा सबसे पहली चीज याद रखें, whenever you want to learn any language, no matter you learn English language, no matter if you are learning any language, you will have to start by learning its sound. याद करें, हमने बचपन में कायदा पढ़ा था, तो डायरेक्ट हमारे कारी साहब ने हमें पहले सिपारे पे नहीं ले आए थे। वो उन्होंने कहा जाओ बेटा नूरानी कायदा लेकर आओ, वहां से स्टार्ट लिया, हुर्फे तहज्जी पढ़ाए, हमें साउंड्स के बारे में बताया कि किस किस हुर्फ को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। काफ हलक से निकालिए, काफ, काफ। तो आपकी यही चीज इस जबान में भी आपको यही फॉलो करना है, that you have to start by improving your sound. आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे हैंड रेस करके बताइएगा, सर आई वांट टू इंप्रूव माय फ्लुएंसी। सर मैंने तो अपनी फ्लुएंसी पर काम करना है, बस दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, बट जस्ट मेक मी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू सर। I want to be a fluent English speaker. That's all, sir. I don't need anything. Osama says, Aksa says, I want to be an English speaker, and I just want to become a fluent English speaker. Lutfullah also says that I want to be a fluent English speaker. That's very good. Everybody wants fluency in Pakistan. Everybody is running after it. I want fluency, sir. लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि फ्लुएंसी से पहले आपकी जिंदगी में क्या क्या आता है, राइट? दूसरी चीज जो आपकी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है सिंटेक्स। मेरी हर बात को बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मेरी हर बात आपके टेस्ट में आएगी, जो मैं बता भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं। सिंटेक्स इज वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब। ये सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है हम लोगों की, सिंटेक्स। और इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव करेक्ट वर्ड ऑर्डर, then you will face the problem. And the third and very important thing which you really don't want to learn, you hate it, grammar. बेटा यही तो आप स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, you have been learning it since your school life and you are fed up with it. You don't like grammar teachers, you don't like those people who are just simply teaching you grammar.
I'm not teaching you grammar. I'm just telling you how to improve language. This is not a grammar class. This is a language class. And I'm just giving you a guideline that what are the steps of learning language. We offer you a spoken class. We offer you discussion class. We offer you a vocabulary session. We also offer you one-to-one discussion session. We also offer you weekly workshops on different topics, right? And the fourth thing, like vocabulary. मुझे vocabulary मेरी नजर में होती है bullets की तरह, गोलियां. You run out of bullets. दो चार गोलियां आपके पास है, आपने चला दी. Thank you very much. You need more bullets. You need more vocabulary. Vocabulary learning should never end. ये वो चार पिलर्स हैं बेटा जिन पर हमें काम करना है. और एक ही पिलर पे हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है स्कूल लाइफ से, और वो कौन सा पिलर है? ग्रामर. एक पिलर पे भी कोई बिल्डिंग बनती है? देखिए दुनिया में ऐसी कोई बिल्डिंग जो एक पिलर पे खड़ी हो. यू हैव नेवर सीन एनी सच बिल्डिंग. उसके बाद जो आप लोग करना ही नहीं चाहते, लिसनिंग. नहीं सर, अब यहाँ पर हमने इतने पैसे दिए, यहाँ पे भी सुनने के लिए आना है, तो सर घर में भी सुनते ही रहते हैं. सर आई वॉन्ट अ क्लास वेयर आई कैन स्पीक. ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं? ईमानदारी से मेरी बात में हाँ कर दिया करें. यस सर, मैं चाहता हूँ बस. सर आई वॉन्ट अ क्लास वेयर आई कैन स्पीक. मुझे ऐसी क्लास चाहिए जहां मैं बोलूं. तो जहां आप बोलेंगी वहां आपको कोई सुनेगा भी ना, तो वो कौन है? उसको मैंने पैसे लेके बिठाया कि बेटा इनको सुनो. देखो लैंग्वेज का रूल होता है, इफ यू आर स्पीकिंग फॉर 5 minutes देन यू विल ऑल्सो हैव टू लिसन फॉर 5 minutes. 5 मिनट बोलना है तो फिर 5 मिनट सुनने का भी स्टेमिना होना चाहिए. लेकिन यहाँ क्या होता है दैट यू रन अवे. यू डोंट, यू जस्ट रन अवे. You just speak and you run away. No, it should not happen in classes. आपका जो लिसनिंग टाइम होना चाहिए ना, वो 60 मिनट्स. अगर आप सुनते हैं ना, तो मैं कहता हूँ 5 मिनट बोले. इफ यू आर लिसनिंग फॉर 60 मिनट्स, यू हैव टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स. जरूरी नहीं कि जितना इनपुट आपके पास होगा वो सारा का सारा आप आउटपुट दे देंगे. बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाते हैं. Whatever you listen for 5 minutes, you don't memorize it, you forget it. लिसनिंग के लिसनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जबान पर आ जाएगी स्पीकिंग. स्पीकिंग, लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग. ये समझदार लोग मेरी बात को समझ जाएंगे. लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग. इफ यू लिसन, यू अंडरस्टैंड एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग. और आपको देखें, 50% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व है. हमें अंग्रेजी समझ आती है. हैंड रेस करके बताइएगा या माइक में मुझे बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? सर I can at least understand. How many of you can at least understand English? नहीं समझ आ रही भाई. आप में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी समझ सकते हैं? उर्दू में बता पूछता हूँ. 4 लोगों ने कहा है सर. अल्हम्दुलिल्लाह, लुत्फुल्लाह ने भी कह दिया. 5-6 हो गए, 6 अफराद हो गए. हाउ मेनी ऑफ यू कैन understand English? If I'm talking to you in English, sir, at least alhamdulillah I understand. Whoever is talking, if a native speaker is even is speaking, sir, I understand, but problem is speaking. तो ये सिर्फ 50% प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर अभी आपके सामने चाइनीज कोई बोले तो आपको तो वो समझ भी नहीं आती है, तो वो सीखना बहुत मुश्किल मरला है. दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. But learning English is the easiest one. You at least understand. So why are you getting worried? You just need an environment where you start listening and you will start speaking. सर देखें, बस मुझे ऐसे भी लोग आते हैं, ऐसे 10% लोग होते हैं. सर आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स. सर मैं अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ. मैं कहा जी. मैंने कहा क्या लिखना चाहते हैं आप? सर मैं CSS के एसेज लिखना चाहता हूँ. सर मैं लिखना चाहता हूँ आइल्स के एसेज. तो मैंने कहा आज तक आपने कुछ रीड किया है? नहीं नहीं. देखिए सर, आप मेरी बात समझ नहीं रहे. आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड राइटर. मैं इतना टाइम नहीं है सर मेरे पास कि मैं बैठ के चीजों को रीड करूं. मैं उनको अल्लाह हाफिज कह देता हूँ. अल्लाह हाफिज. काबिलियत ही नहीं है हमारे लोगों के अंदर. बातों को समझने, ना समझना चाहते हैं ना समझते हैं. बेटा राइटिंग को इम्प्रूव करना है, रीडिंग शुरू कर दो आज से. जो लिखना चाहते हो वो पढ़ना शुरू कर दो.
अब पूछता हूँ कि क्या लिखना चाहते हो, मैं कुछ भी लिखूं, मैं कहा भाई आपको लव लेटर्स लिखने, तो जाइए आप जाकर लव लेटर्स की किताब ले लीजिए, वो पढ़िए। यू विल स्टार्ट राइटिंग लव लेटर्स। आपको आइल्स के एसेज लिखने, आप वो जाके पढ़ना शुरू कीजिए। यू विल स्टार्ट राइटिंग एसेज। हम गाने सुनते हैं तो गाना गाते हैं ना, हम नात सुनते हैं तो हम नात पढ़ते हैं, हमें उसकी लय, उसका म्यूजिक, उसकी रिदम हमारे जहन में से हो जाती है। तो बेटा इसी तरह से व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, आपके जहन में वो चीजें, स्ट्रक्चर्स बैठ जाते हैं। हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। सर विल यू हेल्प अस इन राइटिंग? ऑफ कोर्स आई एम गोना हेल्प यू इन राइटिंग एज वेल। क्या आप रीड करेंगे फिर? आई एम गोना हेल्प यू। आर यू गोना रीड? यस सर, आप बस हमें गाइड करें, हम रीड करेंगे। रीडिंग इज द की, यू विल बिकम अ गुड राइटर। लिसनिंग इज द की, यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। अब बात शुरू करते हैं, वापस जाते हैं। दीज आर 6 पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन वन पिलर, ग्रामर। सवाल उठते हैं ना, व्हाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश सर? व्हाई आर वी स्टडिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम? व्हाई आफ्टर इवन एमए इंग्लिश सर, most of the students who have done MA English can't speak English fluently, right or wrong? Agree or disagree? माइक्स ऑन है आप लोगों के, क्या कहते हैं? MA इंग्लिश की डिग्री लेने के बाद हमारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। मेरा दोस्त MA इंग्लिश करने के This बाद, is so true. This is so true. यस इट इज, मेरा दोस्त MA इंग्लिश करने के बाद मेरे बैच में था, उसने मेरी लैंग्वेज क्लास में एडमिशन लिया। कैसी भी यार, जिस तरह की अंग्रेजी तुम बोलते हो, हम कब बोलेंगे? मैं कहा आप असल में देखें, पाकिस्तान के अंदर यू मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर 3 to 9 months टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। जब भी मैंने आपको लाइफ टाइम ऑफर देता हूं कि भाई 3 महीने का लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लो, उसके बाद छोड़ना नहीं। सैटरडे संडे वर्कशॉप्स लेते रहो, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि तुम्हें ग्रामर से इतना प्यार नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे तुम्हारी ग्रामर की नॉलेज अपग्रेड होती रहेगी, कोई ना कुछ पढ़ते रहोगे। और 1 to 1 डिस्कशन सेशन की लाइफ टाइम एक्सेस होती है, रात 10 से 11 में आपने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया, अब रोज आना 15 मिनट 20 मिनट बोलने के लिए आ जाइए। डेली प्रैक्टिस मेक यू गुड एट इंग्लिश। इफ यू प्रैक्टिस डेली फॉर 15 20 30 मिनट्स, रात में हमारा एक सेशन होता है 1 to 1 डिस्कशन, उसकी एक्सेस आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलती है, वो नॉट फॉर एवरीवन। हाँ लेकिन एक दफा मिल गई एक्सेस तो फिर वो डिस्कनेक्ट नहीं होती है। और वोकैबुलरी सेशन, यू विल हैव लाइफ टाइम एक्सेस, जब तक मेरी किताब मुकम्मल नहीं होती है वो सेशंस इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ठीक है, चले। तो दीज आर द 6 पिलर्स। अब देखें, आपको चाहिए फ्लुएंसी। बेटा जानी, फ्लुएंसी से पहले बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, क्या आपको क्या आपके तलफ्फुज अच्छे हैं? नहीं। आर यू गुड एट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स? कैन यू प्रोनाउंस ऑल वर्ड्स क्लियरली? नो। अब प्रोनाउंसिएशंस को इंप्रूव कैसे करें? तो इससे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे IPA। सर आपको पढ़ाएंगे, एक सेशन आता है मेरा IPA के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आ रहा है। IPA के ऊपर, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, 44 सिंबल्स होते हैं। आई एम गोना टीच यू एंड आई एम गोना एक्सप्लेन यू। और जब आप IPA की नॉलेज रखते हैं तो फिर आपके तलफ्फुज बेहतर होते हैं। फिर मैं आपको एक 6 आवर्स का कोर्स रेफर करूंगा, प्रोनाउंसिएशन कोर्स। जो बच्चे उसको फॉलो करेंगे, IPA की नॉलेज आउट क्लास हो जाएगी। और फिर उनके जो प्रोनाउंसिएशन होंगे, मैं एक चैलेंज दूंगा आपको, 6 डेज चैलेंज मिलता है मेरी तरफ से, एंड यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ विद इन 6 डेज। यू विल फील द चेंज, यू विल फील दैट यू आर इम्प्रूविंग द वे यू आर स्पीकिंग। बट जड़ मैंने आपको बता दिया, आपकी बेस है IPA। IPA पे बात करेंगे तो प्रोनाउंसिएशंस बेहतर होंगे, और फिर प्रोनाउंसिएशंस के साथ साथ फिर मैं आपके काम करेंगे हम इंटोनेशंस पर। सर वो ये क्या होती है? मैंने बहुत डिटेल नोट्स आपको दिए, इनको बैठ के पढ़िएगा जरूर। इंटोनेशंस मींस राइज एंड फॉल इन योर स्पीच। आपकी आवाज में उतार चढ़ाव जो होता है। आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, ये तो बड़ा, नो अप एंड
नो अप एंड डाउन, देखिएगा। आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, इसमें सवाल बताना कौन सा है? दोनों को गौर गौर से सुनना। डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। एक सवाल की टोन पर आ रहा है, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन। या ये सवाल है? ये सवाल है? इज दैट अ क्वेश्चन? माइक्स ऑन है बेटा आपके, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन। हाथ लगाने की दोबारा जुर्रत ना करना। सवाल है? नहीं है। नो नो सर। सर। क्वेश्चन। इंटोनेशंस का फायदा है ये कि जब आपकी इंटोनेशंस अच्छी होती है तो आपको मजा आता है। और मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, पूरी दुनिया है, ये पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशंस। और इंटोनेशंस के बाद आपकी जिंदगी में आता है स्ट्रेस। ये बात है, तो हम तो फ्लुएंसी के पीछे भाग रहे हैं, बट बेटा जब आप आईपीए पे काम करेंगे, आपके प्रोनाउंसिएशंस बेहतर होंगे, इंटोनेशंस बेहतर होंगे, स्ट्रेस बेहतर होगा। आप फिर आपकी जिंदगी में आता है एक्सेंट, फिर बनता है आपका स्टाइल, फिर लोग आपको, फिर लोग आपकी तारीफ करते हैं, भाई कौन है, कहाँ से आए आप, है भाई। फिर लोग कहते हैं फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आप कहते हैं नो आई हैव बीन गुड एट इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। ये पूरी सीक्वेंस फॉलो करनी है, फ्लुएंसी में डायरेक्ट जंप नहीं करनी कीजिएगा, वरना अंग्रेजी ऐसी होगी, गो स्ट्रेट टेक अ लेफ्ट टर्न देयर इज अ स्कूल, pronunciation mistakes, no intonations, no stress, no accent, no style. People will not appreciate this kind of fluency. Go straight, take a left turn, and there is a very big. तो हमें बेटा ऐसी, अगर आपको जबान बोलनी है, अगर आप ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पिंगलिश। क्या कहते हैं बेटा? पिंगलिश। पिंगलिश का मतलब होता है पाकिस्तानी इंग्लिश। So do you want to speak English or Pakistani English? बता दो ना। What kind of English do you want to speak? Sir, I want to speak English. इंग्लिश। Standard English. मैं नहीं कह रहा कि आप अमेरिकन इंग्लिश बोले, मैं नहीं कह रहा आप ब्रिटिश इंग्लिश बोले, मैं कहता हूं स्टैंडर्ड को फॉलो कर लें भाई। स्क्रीन ना बोले, क्या बोले? स्क्रीन बोले। स्टैंडर्ड के पास पास तो आए ना, वाज ना बोले, वरना वही गुलदान मैंने मार देना है सर पे। वाज गुलदान को कहते हैं ना भाई। आई वॉज एबसेंट यस्टरडे सॉरी सर। ये वास कहां से आ गया भाई? ये वास पता है क्यों आता है? ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के असरात है। जो आपकी L1 होती है ना, L1 कहते हैं आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसके असरात आपकी लैंग्वेज पे पड़ते हैं। आई वाज, आई सा, चाक, टाक, सुने ये वर्ड्स आपने? ये ऐसे ही बोलते हैं आप लोग। सारी सारी यस सारी सर। सारी सारी। अब ये जो पंजाब की बहनें हैं ना, सारी सर, पंजाब के भाई जो है हमारे, सारी। अब देखो अपनी लैंग्वेज L1 को कवर करो, बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करोगे तो ये वाज वॉज हो जाएगा। स्क्रीन, पार्क, स्कूल, ये स्कूल और पार्क और स्क्रीन हो जाएंगे इफ यू ट्राई। ऐसा नहीं है कि ये साउंड आपके पास नहीं है, लेकिन आपकी जो पंजाबी लैंग्वेज है और सराइकी लैंग्वेज है, वो बड़ा बर्बाद कर दिया उसने इंग्लिश को। सबसे ज्यादा बर्बादी मचाई है पंजाबी लैंग्वेज ने और सराइकी लैंग्वेज ने अंग्रेजी के अंदर। उर्दू में फिर बचत हो जाती है, सिंधी में ने भी बर्बादी मचाई हुई है। बाबा वेयर वर यू यस्टरडे, आई कॉल्ड यू बट यू डिडंट अटेंड माय कॉल, दैट्स नॉट वेयर। देखें, बर्बाद हो गई इंग्लिश। सिंधी वालों का एक्सेंट यही होता है। अब हमारे दोस्त आते थे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, हम अल्लामा इकबाल से हमने एमए टैफल किया था, तो हैदराबाद से आते थे। तो एक दफा क्लास कैंसिल हो गई, मेरे पास मैसेज आया, मैंने किसी को किया नहीं, सो गया मैं। तो वो सारे लोग दोस्त पहुंच गए, फिर पता चला क्लास तो कैंसिल है। तो उनके ये अल्फाज मुझे आज भी याद है, हसीब यार, दैट वाज नॉट फेयर, व्हाट हैपेंड। मैं भी यूं बोलता था, व्हाट हैपेंड बाबा, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, यू डिडंट इन्फॉर्म अस,
There was no class. Miss Shella told that there was no class. She informed you, but you didn't inform us. That's not fair. भाई देखिए ग्रामर सही है, लेकिन कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये जो L1 है ना, उसने बर्बाद कर दिया। अब वो कंट्रोल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। कैसे बोलेगा एक सिंधी स्पीकर? वो अलग केस है, बिलावल भुट्टो का केस अलग है। वो जब छोटे से थे ना, मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब, जब वो छोटे से थे तो वो लंदन शिफ्ट हो गए। 1 साल से 10 साल की उम्र में अगर आप बच्चों को उनकी कंट्री चेंज करवा दें, तो उनका ये जो हमारा होता है ना ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। अब वो सिंधी बोलने के बजाय, उर्दू बोलने के बजाय, वो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं। अब जब वो सिंधी में बात करते हैं तो, या उर्दू में बात करते हैं, तो उनकी जबान में अंग्रेजी रिफ्लेक्ट होती है। हम अब कुछ करके दिखाएंगे, बहुत हो गया। अब इस दफा हम आएंगे तो छा जाएंगे। उर्दू में बात हो रही है लग रहा है, लेकिन अंग्रेजी है। तो बेटा अपनी L1 को थोड़ा सा कवर करना है, और ये कवर करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेंट, हाउ टू इम्प्रूव योर एक्सेंट। पूरा एक लेक्चर आता है मेरा, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। इंतजार कीजिए, बड़ा जबरदस्त लेक्चर होगा, और उसी के अंदर मैं IPA भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। सिंटेक्स ये क्या है सर? अल्फाजों की तरतीब। अब ये जो अल्फाजों की तरतीब की बर्बादी शुरू होती है, वो उर्दू से होती है। क्यों? ये देखें, उर्दू में आप लोग बोलते हैं बुलबुल का बच्चा खाता है खिचड़ी। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है क्या? बुलबुल का बच्चा खाता है खिचड़ी, पीता है पानी। बताइए, ये हमारी नॉर्मल उर्दू है। अगर हम इसको शायरी से हटा दें, तो शबनम का बच्चा खिचड़ी खाता है, शबनम का बच्चा खिचड़ी खाता है। अब ये जो शबनम का बच्चा है और खिचड़ी है, उर्दू में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। शबनम का बच्चा, खिचड़ी ऑब्जेक्ट, और खाता है वर्ब। ये हमारी उर्दू जबान का वर्ड ऑर्डर है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। पता, ये बात पता थी आपको आज से पहले? आज पहली मर्तबा हमें अपने उर्दू का वर्ड ऑर्डर पता चला है। सर हसीब पढ़ाते हैं इंग्लिश? जी नहीं, हम बोलते हैं सर हसीब इंग्लिश पढ़ाते हैं, सर हसीब इंग्लिश टीच, सर हसीब पढ़ाते हैं अंग्रेजी। ऐसे तो नहीं बोलते हम उर्दू। लेकिन जब हम इंग्लिश के वर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो देखो इंग्लिश का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो क्या है? बताइए जल्दी से। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस। प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसको SVO के नाम से आपको लिखकर दे दूं, तो परेशान तो नहीं होंगे ना? SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है। और बेटा यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले उर्दू सोचते हैं और फिर इंग्लिश बोलते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ऑफ उर्दू फर्स्ट देन यू स्पीक इन इंग्लिश? हमारे साथ भी होता था, हमने फर्स्ट 2 मंथ्स तक शायद हम ऐसे ही इंग्लिश बोलते थे। पहले उर्दू का जुमला सेंटेंस में लाते थे, वो तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू, ऐसे ही बोलते थे हम। तो उर्दू पहले आती थी, फिर जबान पर हम इंग्लिश लेकर आते थे। और वो जो उर्दू का आना पहले होता था, वहीं से हमारी बात बिगड़ जाती थी। जैसे मेरी कल मुलाकात सारा से हुई थी। अब देखो इस जुमले को कैसे लिखोगे? मेरी मुलाकात कल सारा से हुई थी। अब जो एक लैंग्वेज लर्नर है वो परेशान है, मेरी मुलाकात, अब मेरी को क्या बोलूं सर? माई, माई, मेरी, मेरी प्यारी अम्मी, माई स्वीट मदर। अब समझ ही नहीं आ रहा बच्चे को। मेरी मुलाकात, भाई मेरी मुलाकात, आई मेट सारा यस्टरडे। नहीं सर, मैं कह रहा हूं कल मेरी सारा से मुलाकात हुई थी। अच्छा, तुम ये कह रहे हो? जी सर, मैं ये कह रहा हूं मेरी कल सारा से मुलाकात हुई थी। अच्छा, लो, आई मेट। तो अब कहां से शुरू करोगे? क्या ये हो सकता है कि यस्टरडे शुरू में आ जाए? इज दैट पॉसिबल? यस्टरडे को शुरू में ला सकते हैं? ऐसा मुमकिन है? पॉसिबल है? ये सिंटेक्स होता है।
कि भाई आप यस्टरडे को शुरू में ले आए, यस्टरडे आई मेट सारा, ये जुमला भी सही है। क्या आई के बाद यस्टरडे लगा सकते हैं? है बेटा, आई यस्टरडे हो सकता No, है? sir. आई यस्टरडे मेट सारा सही है बेटा, बिल्कुल सही है। आई मेट सारा यस्टरडे, यस्टरडे आई मेट सारा, आई यस्टरडे मेट सारा। अब देखो यही वर्ड ऑर्डर हमें समझना है, हम सर आपको पढ़ाएंगे। अब बात ही हम सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, तो सिंटेक्स के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा आप बताओ, सारा प्ले होता है या सारा प्लेज होता है? Sarah plays. अब ये Please. माशाल्लाह आपने, अच्छा अगर मैं सारा की जगह पर दे लिख दूं, तो बताओ दे प्ले होगा या दे प्लेज होगा? Play. Play. अच्छा ये भी देखो, हमारी ये बेसिक नॉलेज होती है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री करता है। आप लोग कहेंगे हाँ सर इसमें तो कोई मसला नहीं, आई के साथ क्या लगाते हैं हम, आई एम होता है या आई आर होता है? M. Am. I am. वही बात है, कभी जिंदगी में तुम्हारी जबान से आई आर निकला है? No, No, sir. sir. No, sir. मैंने आई आर में मास्टर किया है, इंटरनेशनल रिलेशन भाई। चले अच्छा नहीं, अब मजाक था। अली एंड आई आर लिखूं या अली एंड आई एम लिखूं? Ali and I are. Early and I are. अब आ गया जबान पर खुद ब खुद। ये कहलाता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, और ये भी सिंटेक्स का ही हिस्सा है। अल्फाजों की तरतीब हमारी बहुत बिगड़ी हुई है। अच्छा अब एक और सेंटेंस देखिएगा, शी इज कॉलिंग यू, और मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सही है मेरी वर्ड ऑर्डर, सही है मेरा? No, No, sir. sir. No, इस, sir. इसका सही वर्ड ऑर्डर क्या होगा? Is she Yes, calling? Is she she calling you? calling you. Is she calling you? कॉलिंग यू। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? कि देखिए हमारे Yes. सिंटेक्स खराब है। हमें कभी हाँ, शी कॉल्ड यू यस्टरडे, अब देखें सवाल देखें, बच्चे यूं सवाल करते हैं, शी कॉल्ड यू यस्टरडे सर, सर हाँ बेटा बोलो, शी कॉल्ड यू यस्टरडे, मतलब क्या कह रही हो, सवाल कर रही हो या बता रही हो शी कॉल्ड यू यस्टरडे? वो सवाल क्या कर रही है असल में, हकीकत में क्या कर रही है वो? शी कॉल्ड यू यस्टरडे सर, है सर, शी कॉल्ड यू, क्या कर रही है वो? बताओ भाई, टोन से पहचानो, टोन क्या बता रही है कि ये क्या है? शी कॉल्ड यू, कौन सवाल. कॉल किया वो सवाल किया वैसे इंफॉर्मेशन ये सवाल पूछ रही है, क्या ये सही फॉर्मेशन है? शी कॉल्ड यू, No, sir. No, No, sir. sir. तो No, फिर sir. कैसे पूछेंगे? Did she call you? ये शी, Did she call? डिड Did she call you? शी कॉल यू। हमारे वर्ड ऑर्डर खराब है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, और सर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में आती है ग्रामर। ओ माय गॉड, चले आपकी एक छोटा सा ग्रामर का टेस्ट ले लें, आज आपको फायदा होगा उसका बहुत ज्यादा। ठीक है, टेंसेस का छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। आप लोगों को टेंसेस आते हैं ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारा, Yes, sir. सारा राइट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है? Present simple. Present indefinite. Simple present. Indefinite. Present simple. माशाल्लाह। अच्छा मैं इसको प्रोग्रेसिव में लिखना चाह रहा हूं, कैसे लिखूंगा? Writing. Is Sarah सारे is Sarah writing. is writing. क्या ये सिस्टम एक्टिव है सबका? सारा इज राइटिंग अ लेटर, सारा राइट्स अ लेटर, आपको ये Yes. अगर तो देखिए आपको ये चीजें आती हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कहें सर ये क्या चल रहा है सर, व्हाट आर यू डूइंग सर, समझ नहीं आ रही, Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा अब परफेक्ट में जाएंगे तो क्या होगा? शी हैज राइट होगा या रोट होगा? Written होगा sir. Wrote. She has Written written होगा. a letter. She has written a letter. Written. Third form. रिटर्न। ये देखो ये बातें तो जब भी मैं कहता हूँ इंटर से नीचे वाले मेरे पास नहीं आने चाहिए, इंटर तक ये कॉन्सेप्ट्स रट जाते हैं हमारे, हमें ये सब कुछ आता है हमें। आप बताओ ये कौन सा टेंस आ रहा है? Perfect Sarah Perfect continuous. has continuous. She is Present perfect continuous. Continuous.
सर यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, कसम से दलील कर दिया इसने, मतलब अंग्रेजी अभी भी नहीं आई हमें। हमने तो हमारे हमारे भाई हमें हर महीने, शायद हर महीने Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आइए राइट्स को पास्ट में लेके जाते हैं, क्या करूं? शी वॉज राइट, She She wrote a wrote. letter. शी रोट अ She You wrote. wrote a अच्छा, शी इज राइटिंग को He wrote. पास्ट में She कैसे? He was. was. Second form. She was. She was writing एस a को letter. पास्ट में लेके जाए। Had. Had. Sarah Had. has been writing a Had. letter. अगर Had been. Had been. Had. Had been. गुड। रात के बच्चे थोड़े काफी एक्टिव होते हैं, दोपहर की आवाम सो रही थी हमारी। वेरी गुड। आई लाइक टू टेक इंटरेक्टिव सेशन। मैं इस तरह के सेशन लेना मुझे अच्छा लगता है कि लोग बोलते रहे, हमारी बातें चलती रहे, हमें तन्हाई का एहसास ना हो। वैसे ही बहुत तन्हाई हम जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, सिर्फ आपकी बातें और आपके कमेंट्स और आपके रिव्यूज हमारी जिंदगी को अब जिंदा रखते हैं। ठीक है, चले। अब मुबारक हो, आपके टेंसेस रिफ्रेश हो गए। आप अगर देखो ये बातें आती हैं तुमको, तुम्हें याद है ये कॉन्सेप्ट्स, तुम्हें पता है कि ये क्या है। सर दिस इज प्रेजेंट सिंपल, आई रिमेम्बर, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। आज आपका टेस्ट भी होगा, आपसे पूछा जाएगा, इसी तरह से आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। अगर आपने उसके सही सही जवाब दे दिए तो आपके 35 आउट ऑफ 35 कहीं नहीं गए। इस तरह के सवाल पूछूंगा तो जवाब मिल जाएंगे ना मुझे, कि बताइए ये जो जुमला लिखा हुआ है ये इसका ताल्लुक किस टेंस से है, तो आप बता देंगे, कोई परेशानी की बात Yes, नहीं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Isha. मैंने एक ऐसा टेस्ट डिजाइन किया है, मैं आज ही डिजाइन किया है। मैं लोग कहते हैं नहीं कब से पढ़ा रहे हैं, कब के टेस्ट हो गए। मैं हर रोज अपना मटेरियल डिजाइन करता हूँ। मुझे मजा आता है जब मैं कुछ नया पढ़ाता हूँ, एक नया फॉर्मेट फॉलो करता हूँ। तो मेरे 2025 के नोट्स आ रहे हैं तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया आज, उस पीडीएफ के अंदर 40 सफात है। कितने सफात हैं? 40। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये उन सारी बातों की समरी है। जब आप उन बातों को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे इसमें सर ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। वक्त के साथ साथ वो सारी बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, याद रहेगा। आप जो मैं लिख रहा होता हूँ ना लाइव एंड एक्सक्लूसिव, ये आपको नोट्स में नहीं मिलता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अपने नोट्स में लिख लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि सर वो जो आपने क्लास में लिखा था वो कहाँ है। ये लीजिए, मैंने उसको शेयर कर दिया है। अब आ जाइए, हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी बुकलेट पर एक नजर। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होता हूँ। देखो, तुम्हें जितनी बातें मैंने आज के सेशन में तुमसे शेयर की हैं वो तुम्हारे सामने आ रही हैं। तुम इसको पढ़ना जरूर, बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें नोट्स दिए हैं। सबसे पहली चीज, वी हैव टू वर्क ऑन साउंड। साउंड के लिए हमें फोनेटिक्स आने चाहिए। सर ने आपसे वादा किया है, सर आपको आईपीए पढ़ाएंगे। सर आईपीए के पढ़ने से फायदा क्या होता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसको पढ़ने से फायदा ये होता है कि जब आप कोई ऐसा वर्ड देखते हैं तो आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये देखिए, आपने एक वर्ड देखा, आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। आपने ये वर्ड कभी पहले नहीं देखा। ठीक है, मैं एक ऐसा वर्ड भी लिख देता हूं जो शायद आपने अपनी जिंदगी में 9th मैट्रिक में तो लाजमी देखा होगा। है भाई, ये वर्ड तो देखा ही है, देखा ही देखा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ऐसा वर्ड लिखता हूं, मैं इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूं। ठीक है ना। आई हैव लर्न माई लेसन। मैंने बोल भी दिया कि इसका तलफ्फुज क्या है। आई एम, बात खत्म। यहां पर ये मैंने वर्ब इस्तेमाल किया है और यहां पर मैंने ये इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव। जब आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? अब आप पूरा पाकिस्तान का इम्तिहान ले लो, वो पढ़ेगा इसको लर्न, जबकि ये वर्ड है क्या? लर्नेड। जाके वेरीफाई कर लेना। और ये हमें कैसे पता चलता है ये लर्न है या लर्नेड है? ये आपको आईपीए बताते हैं। ये ऊपर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, अहमद अली पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अहमद अली पढ़िए।
सर जी डेब्रिस आशा हर पाकिस्तानी यही पढ़ेगा। यस अस्मा, क्या लिखा हुआ है सफदर? Debris. सुबह का सेशन का सर। यस Yes, sir. Between. डेब्री, माशाल्लाह। जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको ये पता होगा, जिन्होंने सुबह का सेशन लिया था उन्होंने इस वर्ड को सुना है तो उन्होंने याद कर लिया। अरीबा बताइएगा क्या Yes, sir. Sir, debris. डेब्रेस बोले ना, ऐसा साउंड आएगी डेब्रेस, क्योंकि पहली दफा पढ़ा है, नया वर्ड है। कभी भी सर जी डेब्रेस, डेब्रिस होगा। डेब्री, डेब्रिस, इसमें एस हटा दीजिएगा और फिर पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। डेब्री Debris. Debris. डेब्री, डेब्री का मतलब होता है मलबा। डेब्री, हमें कैसे पता चलेगा कि डेब्रिस है या डेब्री है? पढ़ो जाकर आईपीए। आईपीए तुम्हें बताएंगे कि ये डेब्री है या डेब्रिस है, और कोई नहीं बता सर सकता। ये क्या है सर? हाँ, आईपीए क्या है सर? ये IP. आईपीए सिंबल्स होते हैं। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो ये 44 सिंबल्स हमें किसी ने नहीं पढ़ाए, हमें 26 लेटर्स पढ़ाए। लेकिन उन 26 लेटर्स की कितनी साउंड्स हैं? 44। वो जो 44 साउंड्स हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स हैं। वो सर आपको पढ़ाएंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है? डेब्री। अब अच्छा ये तो पढ़ के बता दो सफदर, क्या लिखा हुआ है? बचपन से पढ़ते रहा अक्सा। Theory. Fury. थ्योरी, थ्योरी। Fury. थ्योरी, Theory. थ्योरी, Theory. थ्योरी। अब गोरे को सुने, थ्योरी, 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 Theory. थ्योरी। Theory. Theory. पाकिस्तानी थ्योरी, थ्योरी, थ्योरी। theoretical subjects, theoretical subjects, theoretical subjects। थ्योरी पढ़नी है हमें, थ्योरी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हमें। थ्योरी, थ्योरी। अब ये तो पूरा पाकिस्तान कहता है आई हैव लर्न माई लेसन, और इसको याद कर लो, और याद कर लो इसकी मीनिंग्स। आई एम लर्नेड, लर्नेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा। आईपीए का फायदा इन तीन बातों से हो जाएगा। मैं लिखूंगा, आप लोग पढ़ेंगे। CUT, CUT, Cut. 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 CUT, Bird. C cut, BUT but, PUT Put. 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 नहीं नहीं यार, देखो रिदम आउट कर दिया तुम लोगों ने। CUT कट, BUT बट, But. PUT बट। Put. 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 Okay. भाई अगर CUT BUT जब चल रहा है कट बट तो पट कर दो, नहीं सर इट्स पुट, तो फिर उसको कुट कर दो, गोरा कुट लगा देगा तुम्हारी। ठीक है ना भाई? पट नहीं सर, पुट तो फिर बुट कर दो। अब ये कौन है सर जो हमें बताता है ये कट है और ये बट है, ये पुट है? ये गोरा नहीं बताता, ये आईपीए बताता है। तो आईपीए को हम स्टडी करेंगे, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं। आईपीए पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर काम कर सकेंगे। प्रोनाउंसिएशंस पे काम करेंगे तो इंटोनेशंस पे काम होगा, स्ट्रेस पे काम होगा। स्ट्रेस के बाद आपकी जिंदगी में सिंटेक्स आता है। सिंटेक्स के ऊपर हमने बहुत डिटेल में अभी थोड़ी सी बात करी, और बात करेंगे। सिंटेक्स में आपके पास सबसे पहले वर्ड ऑर्डर आता है, जैसे मैंने आपको बताया। वर्ड ऑर्डर के बाद आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। आपके पास आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे सिंपल, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आप कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं, जरा गौर से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। हम चार तरह से सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूं। सारा राइट्स, बताएंगे सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं? सर हम नहीं जानते, कसम से पहले बोला है। सिंपल। Simple, sir. Simple. अच्छा अगर मैं कहूं सारा राइट्स, सारा राइट्स एंड अली लिसन्स, अब ये जो दो सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं
तो ये कौन सा? I think compound. Compound. अगर ये आपकी नॉलेज में है तो एक्सलेंट कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब मैं फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने जा रहा हूं, तवज्जो से देखिएगा। When she writes, Ali makes a noise। बताइए, ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? Complex. ये कॉम्प्लेक्स है, इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने ये कहा when she writes Ali makes a noise and disturbs her। अब ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये आपकी जिंदगी में एक नई एंट्री हो रही है, ये कहलाता है Compound. हाँ, Complex. एक्सलेंट आंसर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगर ये आपकी बेसिक नॉलेज में है तो बेटा यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। अगर नहीं है तो सर आपको ये चीजें पढ़ाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आज के पेपर में बहुत काम आने वाली है ये बातें, ठीक है। हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिस पर हम काम करेंगे। फिर हमारे पास फ्रेज आता है, मेरा इसके ऊपर लेक्चर आएगा। फिर हमारे पास एग्रीमेंट्स आते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जैसे मैंने आज के सेशन में बात करी। शी प्ले होता है या शी प्लेज होता है, दे गो होता है या दे गोज होता है। तो ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज है। फिर हमारी जिंदगी में ग्रामर आती है, ग्रामर के अंदर हमें टेंसेस का आना जरूरी है, हमें सेंटेंस की टाइप्स का आना जरूरी है। शी इज रीडिंग अ बुक, इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इज शी रीडिंग अ बुक, क्या पूरी आवाम ये जानती है कि इट्स अ क्वेश्चन? किसी को कोई इसमें कोई टेंशन है? इज शी रीडिंग अ बुक, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझते हैं ना तमाम स्टूडेंट्स सवालिया जुमले? व्हाट आर Yes, यू? sir. लिसन टू मी, Yes, sir. लिसन टू मी, बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव? Imperative. वेरी, Imperative, sir. ये इंपेरेटिव है। लिसन टू मी, टॉक टू मी, वर्क हार्ड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद ग्रामर के अंदर हमारी नॉलेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का होना जरूरी है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मैं पढ़ाता हूँ। आर्टिकल्स का होना जरूरी है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए, पंक्चुएशंस आनी चाहिए, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस का पता होना चाहिए। फिर हम वोकैबुलरी पे जाते हैं। हमें वोकैबुलरी पे जब हम बात करते हैं तो वोकैबुलरी लर्निंग शुड नेवर एंड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जैसे देखें, डाई का मतलब होता है मरना। क्या बस एक वर्ड याद कर लिया और उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड याद नहीं करोगे जिंदगी में? भाई, अगर मैं कहूं पास अवे, तो पास अवे का मतलब भी क्या होता है? Same होता है, sir. मरना। लेकिन ये बहुत फॉर्मल, गुजर गया, मतलब भूल गुजर गया। जाना, गुजर जाना। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक और बहुत फॉर्मल वर्ड है, डिमाइज, रहलत पा जाना। और कहते हैं ना, अबे वो असलम पान वाले ना, उन असलम असलम चचा, अबे हाँ, अबे जिनके तुम पैसे लेके भागे हुए हो, हाँ वो लुढ़क गए। किक द बकेट, अबे चल शुगर, वरना वो तो रोजाना मुझे दलील कर देते। किक द बकेट, बेटा वो मरने के बाद आप हशर में होगा फैसला। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब लुढ़क गए। अब देखिए ये वोकैबुलरी हम है, इंग्लिश फिल्मों में ज्यादा बोलते हैं किक द बकेट्स। किक द बकेट। ये कहलाती है बाजारी बोली, इनफॉर्मल, वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज। स्लैंग नहीं है, वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। डिमाइज फॉर्मल है, पास अवे जो एडवांस यूजर्स होते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। डिमाइस का वर्ड रिटन में अखबारात में आपको नजर आएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जब कोई वोकैबुलरी याद करें तो हमको इस बात की नॉलेज हो, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे देखें आसान सी बात पूछता हूँ, शी ड्राइव्स, बताओ इसमें ड्राइव क्या है? वर्ड पे सर, जो काम और करते हैं। शी ड्राइव्स केयरफुली। अब अच्छा बताओ केयरफुली क्या है? एडवर्ब। Adverb.
एडवर्ब, देखो ये हमारी बेसिक नॉलेज है जो हमें स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आए हैं, हमें एहसास नहीं है, हमें कितना कुछ आता है, लेकिन हमारी सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? स्पीकिंग। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ क्या है? स्पीकिंग। हमें अपने जो ये कॉन्सेप्ट है इनको रिफ्रेश करना है और इनको रिफ्रेश करके आगे बढ़ना है। वोकैबुलरी आपके पास आ गई, सिनोनिम्स पे काम करना है, एंटोनिम्स, उसकी यूसेज, कॉलोकेशन। सर ये क्या चीज है? कॉलोकेशन बेसिकली आपके अल्फाजों का एक कॉम्बिनेशन। भाई आपने याद कर लिया मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब है गलती, लेकिन मैं गलती करता हूं, आई डू अ मिस्टेक, जुमला गलत। आई डू अ मिस्टेक नहीं, आई टेक अ डिसीजन, गलत। आई मेक अ डिसीजन, आई टेक अ ब्रेक। रेन, अब रेन से पहले हैवी, हैवी का मतलब तो भारी होता है। ये जो कॉलोकेशंस हैं ये कौन बनाता है? ये गोरा बनाता है, और इसको हमें याद करना पड़ता है। इसके अंदर कोई रूल्स नहीं होते हैं याद करने का। कोई वर्ड जब याद किया जाता है तो उसको देखा जाता है कि ये किसके साथ कॉलोकेट करता है। मैंने क्या कहा? किसके साथ कॉलोकेट करता है, इसका कॉम्बिनेशन वर्ड क्या है। ये नहीं कि बस मिस्टेक याद कर लिया, मिस्टेक का मतलब है गलती। तो लेकिन उस गलती को कैसे इस्तेमाल करोगे? मेक अ मिस्टेक या डू अ मिस्टेक? आई मेक अ मिस्टेक। सो कॉलोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लैंग्वेज वोकैबुलरी के अंदर। ईडियम्स एंड एक्सप्रेशंस, ईडियम्स हमें याद होने चाहिए, हम ईडियम्स का इस्तेमाल करें। हमें वर्ड फैमिली बनाना नहीं आती है, हम वर्ब से एडवर्ब नहीं बना पा रहे होते, हम वर्ब से नाउन नहीं बना पा रहे होते। ठीक है, और फिर मैंने दो आखिर में दो बातें की थी। लिसनिंग, लिसनिंग करोगे तो स्पीकिंग की तरफ जाओगे। लिसनिंग के आदाब सर आने वाली एपिसोड्स में आपको बताएंगे। राइटिंग की, रीडिंग करोगे तो राइटिंग की तरफ जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी बुक को भी एक नजर देखते हैं। इस एक्टिविटी बुक में क्या होता है, मैंने दोनों पीडीएफ आपसे शेयर किए। जो मैंने पढ़ाया है उसके लिए कुछ आपको पढ़ने को, आप चाहते हैं ना कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिलती रहे, तो वो एग्जाम्पल्स आपके पास है। एक्टिविटी बुक उसकी के साथ है, आप आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना जब आप अपनी पीडीएफ को, तो नीचे ही आपको एक्टिविटी बुक भी मिल जाएगी। आप इसको, अब आप यहाँ पर देखें, प्रोनाउंसिएशंस, इंटोनेशंस, स्ट्रेस, वो सारी बातें, सिंटैक्स, अब यहाँ पर कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये आप सिर्फ रीड करेंगे अपनी नॉलेज के लिए। फिर क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा हमारा वर्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। हमारे देखो यहाँ पर देखो, ही क्विकली आंसर्ड द क्वेश्चन, ये सही है, लेकिन हम कभी कभार कुछ बच्चे कहते हैं ही आंसर्ड क्विकली द क्वेश्चन। कुछ लोगों को ये सही भी लग रहा था, आज दोपहर के सेशन में कुछ बच्चों ने कहा सर ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें गलती का एहसास ही नहीं हो रहा है। तो हमारी प्लेसमेंट्स गलत हो रही होती हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस किया, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया, फ्रेज के बारे में मैं आने वाली एपिसोड्स में बताऊंगा, इसका मैंने टेस्ट में कोई हिस्सा शामिल नहीं किया है क्योंकि ये आपका ऑलरेडी टॉपिक है। फिर ग्रामर के अंदर मैंने आपसे आपके टेंसेस को थोड़ा सा चेक किया, रिफ्रेश किया। फिर मैंने आज आपसे सेंटेंस टाइप्स को रिफ्रेश किया। और ये सब चीज़ें मेरे कोर्स में आने वाली हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, फिर आर्टिकल्स की यूसेज, इनको आप अपने फ्री टाइम में बिल्कुल लाजमी पढ़िएगा कि ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। और जब पढ़ ले तो देखें, अब वोकैबुलरी, वोकैबुलरी की मीनिंग्स के अंदर हमें सिनोनिम्स याद हो। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आज पेपर में शायद कुछ फायदा हो जाए आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके इस्तेमालात, उसकी कॉलोकेशंस, जैसे देखो टेक अ ब्रेक, हैवी रेन, पे के साथ पे मनी होता है सर, पे अटेंशन। कॉफी अगर आपकी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग कॉफी, ये वर्ड ये गोरे ने बनाकर दिया है आपको। ईडियम्स, ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग सिक। स्पिल द बीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, राज फाश कर देना किसी का। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास देखें, सक्सेस से वर्ब बना दिया आपने, सक्सीड, एडजेक्टिव बना दिया ही सक्सेसफुल, और फिर एडवर्ब बना दिया सक्सेसफुली। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, दिस इज कॉल्ड वर्ड बिल्डिंग। फिर मैंने आपसे कहा टेस्ट योरसेल्फ, तो इस पीडीएफ के अंदर अपने आप को टेस्ट कीजिएगा। इसकी आंसर शीट जो है मेरे ख्याल से मैंने ऐड की है, देख लेते हैं। आंसर शीट भी है भाई। आगे चलते हैं, चलते चले 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 चले, वोकैबुलरी, और ये चलते हुए जा रहे हैं, आंसर शीट आ गई। तो ये देखें कितनी सारी आपके लिए एक्टिविटीज हैं, इसको ये आपके लिए बनाया है।
डू योर होमवर्क, स्ट्रॉन्ग रेन। नहीं सर, स्ट्रॉन्ग रेन तो नहीं होता। फिर क्या होता है? टेक का एग्जाम होता है, पावरफुल कॉफी होता है, मेक अ मिस्टेक होता है, क्या होता है? हैवी टी होता है। तो आपको ये सही करने हैं, कॉलोकेशन सही, गिव अ ब्रेक होता है, टेक अ ब्रेक होता है, डू अ डिसीजन होता है, मेक अ डिसीजन होता है। तो ये आप रीड करेंगे तो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। आपकी डिस्कशन टीचर ने आपको ज्वाइन कर लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू मिस आबिदा। You have three different discussion teachers, you have got three different spoken teachers, and I am your grammar teacher SKH। और मैं आपके साथ रहता हूँ तकरीबन 1 महीने में, आपके साथ रहूंगा तीनों सेशंस में। आपकी जबान का ताला टूटेगा तो फिर मेरे साथ 2 टीचर्स और आ जाएंगे। देन यू विल हैव 9 डिफरेंट टीचर्स, और एक आपकी टीचर होती है 1-to-1 डिस्कशन सेशन की। सो यू हैव 10 डिफरेंट टीचर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म आपके बैच के लिए। बाकी बैचेस के लिए दूसरे टीचर्स होते हैं। वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 42 लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हु आर गिविंग देयर सर्विसेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मिस आबिदा, ओवर टू यू। काइंडली शेयर योर स्क्रीन एंड गो अहेड। Assalamu alaikum class, how are you all? Alaikum salam, ma'am.